एक राइट स्ट्रीम चूज करती हूँ तो उसके रिस्क क्या है, what are the pros, what are the cons, okay, and if I don't make it then do I have any other options, क्या मेरे पास और options हैं अगर मैं नहीं choose करता हूँ अभी. So you all might be thinking students, yes or no? Yes, right? So moving to the next slide. जेमी कैप्सन का मैं एक कोड शेयर करना चाहूँगी. Don't ask kids what they want to be when they grow up, but what problems do they want to solve. हम अमूमन बच्चों से ये पूछते हैं कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं. Yes? Yes, right or no? Students, okay. I need students who say yes or no. Am I right? Okay. So these changes the conversation from who do I want to work for to what do I need to learn to be able to do that. Okay. So we need to know कि हम क्या problem solve करना चाहते हैं. Change the scenario. कि आप क्या बनना चाहते हैं. Modify it to what problems do you want to solve. Right. And this changes the conversation from who do I want to work for. मैं किसके लिए काम करना चाहती हूँ बड़े होके. Okay. Like choosing the stream after 12th, after my graduation. तो मैं किस चीज़ के लिए काम करना चाहूँगी. Okay. And उसके लिए मुझे क्या पढ़ना है. उसके लिए obviously when you are to opt IAS, IPS, civil services, for example, okay, all will not opt for UPSC, okay. So उसके लिए मुझे कौन सा पाथ चूज करना है, मुझे उसके लिए क्या पढ़ना है, that is important, okay. So moving to the next slide. So how are you going to choose your career? First is you need to know yourself. हम अपने आप को जानेंगे obviously कि मेरे इंटरेस्ट क्या है, मेरी वैल्यूज क्या है, मेरी पर्सनालिटी क्या है, राइट. मेरे एसेट्स क्या है, व्हाट डू आई हैव, व्हाट स्किल्स आई हैव. ऑब्वियसली स्किल्स मैटर्स ना. यस और नो. यस. एंड एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज. क्या पॉसिबिलिटीज मेरे पास हैं. Try, research, try things out. You have to research out, right? If you are going to in UPSC, so you have to find out, you have to find the researchers. Like you have to explore कि मुझे उसके लिए you need to be a graduate. Your minimum age to which should be 21. You need to what? You need to research about it. You need to learn about it. Okay? Clear है सबको? Every students? Okay. Next is make choices. Okay. You have to set goals, which goals you are choosing, okay, and develop a plan. आपको obviously एक plan set करना होगा. To reach somewhere, if आप मान लीजिए आप जोधपुर जाते हैं, for example, एक route. So you follow a plan that मैं यहाँ से निकलूँगी, then I'll cross Parsi, then I'll go to जोधपुर. So you have a plan, right? So you have to make a plan and make it happen. Obviously, you need to have actions. Okay, without action you cannot do, or you can do. No, you need to take actions, appropriate actions in the right direction. Okay, हम लोग सब hard work करते हैं, but no one does the smart work. Smart work करना चाहिए right direction में. हमें पता होना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा. Okay, in which stream I'm going to opt. Okay. Plan your career. There are a lot of options and opportunities available. Yes? There are lots of options and opportunities like humanities, PCB, PCM. Right? All streams are equally good and competent with each other. All streams are good? Yes? Yes or no? Okay. Some parents might be good stream तो PCM, PCB ही होता है. नहीं तो humanities और arts नहीं होता है, ना commerce होता है. Few parents will be like this. Okay, so I want to counsel you. For example, there is a fish. Everyone is aware about the fish swims in the water, and there is a monkey. Okay, so where does the monkey goes? Monkey climbs, monkey jumps. So the example of the way of giving this example was everyone is born with different traits and characteristics. सारे बच्चे डिफरेंट ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पैदा हुए हैं. माय डियर पेरेंट्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपने बच्चे की एफिशिएंसी समझें. देयर इज नो राइट स्ट्रीम, देयर इज नो राइट स्ट्रीम के और बेस्ट स्ट्रीम.
दैट कि पीसीबी से आप डॉक्टर बन जाएंगे, बीडीएस, बीएमएस, बीएमएस बन जाएंगे, दैट इज ओनली एफिशिएंट। यू नीड टू एक्सेल इन योर फील्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट। माय डियर पेरेंट्स, yes or no? Okay, for example, take the example of Javed Habibs. Okay, he is the best hairdresser, yes or no? Yes. So you need to excel in the field. You are excellent in your field. Okay, for example, someone is choosing psychology and has the command on it, so that person is going to be efficient. You need to be efficient in your field. You need to have the caliber, skill, and one should choose a career based on academics, personality and desire. For example, अगर किस इंसान का मैथ्स बहुत अच्छा नहीं है and the person chooses maths, so what will happen? The person will fail, obviously, basics are weak है. So you need to choose your career based on academics, personality and desire. Now ambition versus reality. एक तो आपका ambition हो गया, okay? अब आपकी reality. Before making career choice, take time to understand yourself. Time लीजिए, अपने आप को समझिए, अपनी like, dislike, preferences को समझिए. For example, you have a very good, caliber of becoming a RJ. Okay. Now your parents are saying, नहीं आपको तो बेटा MBBS ही करना है, because MBBS बन के you have a good salary. Okay. But you have the talent of becoming an RJ. So I request parents, मैं उन parents को कहूँगी कि अपने बच्चे की efficiency समझिए, interest समझिए, preferences समझिए. Okay. The next is ambition cannot be injected nor it be imitated. Ambition ना कि inject हो सकते, like look at Mr. Sharma, उनके बेटे जो हैं IAS हैं, IPS हैं या डॉक्टर हैं, तो now you need to inject in the child. So and so Mr. XYZ parent है, वो कह रहे हैं कि आपको मिस्टर शर्मा के बेटे जैसे बनना है. अमूमन ये इंडियन सोसाइटीज में होता है. That person cracked IAS, IPS, बैंक मैनेजर हो गई हैं वो, and that person is assistant professor. Okay, so you need to become like that. And now आपके अंदर efficiency है, for example fish वाली, you can only swim in the water. Fish can climb on the tree, yes or no? Fish can fly in the air, no. Yes, exactly. तो आपको अपनी efficiency की तरीके से चलना है. You don't need to imitate. Parents आप लोग को ऐसे नहीं कहना है, नहीं बेटा आपको मिस्टर शर्मा की तरह ही बनना है, मिस्टर शर्मा के बेटे की ही तरह बनना है, नहीं तो बेटा आप कुछ नहीं होगा. अगर आप इंजेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप इंजेक्ट करते हैं एम्बिशन, तो क्या होगा? बच्चा फेल हो जाएगा, ड्रॉप आउट करेगा. इवन इफ द चाइल्ड डज, इट्स वेरी लेबोरियस, हार्ड वर्किंग है, तो क्या होगा? He'll shift the occupation, he might change it. Okay. Now parents attitude determining factors in shaping one's career goal. So my dear parents, आपको बहुत supportive होना होगा. You need to support your child, you need to understand the child, you need to keep an eye on the child. Okay. Obviously every children here are the students. Yes. You don't like to कि what to say, माँ बाप अगर आई रखते हैं आप पे, चेकआउट रखते हैं, you don't feel it nice. But I would like to counsel you कि पेरेंट्स आपका बेहतर चाहते हैं. None in this world apart from teachers and parents can do beneficial for you. Okay, they are working hard for you, isn't it? All the time. So you need to be more focused. Yes or no? Am I right, students? Yes. Basic errors while choosing a career. First is parental pressure, माँ बाप का pressure. Okay, to choose a stream that parents are forcing you to. आप as a parent force नहीं करेंगे. You'll ask the child very politely, humbly, what problems you want to solve. First thing. Second is peer pressure, to choose the same stream as your friend. Okay, my dear students, do you understand what is peer? Yes or no? Everyone. Peer क्या होता है? Friend, right? अब आप peer pressure में ये बोलेंगे नहीं मैं तो 10th क्लास तक उनके साथ पढ़ी हूँ मेरी फ्रेंड्स के साथ, so मेरा ग्रुप नहीं डाइवर्ट होना चाहिए, I'll opt for PCM, PCB और humanities और commerce.
Okay. So, do you have a friend of LKG still in your touch? आप लोग का? No. So, with time, we need to enhance ourselves. Okay? Humans are born to upgrade ourselves. Right? तो हमारे दोस्त पिछले छूटते जाते हैं. And we need to be more precise, more focused on our career. Okay? Everyone is understanding? Okay. Now, mob mentality. Okay. What is mob mentality? To follow the crowd or trend. हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे. सब MBBS में जाते हैं, सब UMS में जाते हैं, सब IAS बनते हैं, तो मैं क्राउड ट्रेंड को फॉलो करूंगी. आई विल फॉलो द ट्रेंड. आई विल फॉलो समथिंग जो कि मेरे अंदर एफिशिएंसी नहीं है. तो यू डोंट टू हैव अ मॉब मेंटालिटी. इस मेंटालिटी को चेंज करें. यू नीड टू एक्सेल इन योर फील्ड. मान लीजिए कोई इंसान कॉबलर है, लेकिन वो ऐसे शूज प्रिपेयर करता है जो एक ब्रांड है, लाइक बाटा. ठीक है, तो डज इट एक्सेल? यू नीड टू बी परफेक्शनिस्ट इन योर फील्ड. नेक्स्ट इज इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रोफेशन. अमूमन पेरेंट्स कहते हैं कि बस बेटा आप तो इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में ही जाना है, चाहे सेशन हो गया है, लेकिन आप लोग को इसी फील्ड में जाना है. वी हैव डिसाइडेड हम तो MBBS नहीं कर पाए बिकॉज हमारे पास तो इतनी एफिशिएंसी नहीं थी, इतनी स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज थी, तो वो मेरा एम्बिशन था. अब बेटा आपको पूरा करना है. तो पेरेंट्स, माइंड योर पेरेंट्स, प्लीज डोंट डू दिस. आप प्लीज ये सब ना करें. ट्राई टू अंडरस्टैंड. और मान लीजिए हो सकता है चाइल्ड में उतना कैलिबर ही ना हो. चाइल्ड हैज द एफिशिएंसी ऑफ बिकमिंग एन RJ. Okay, the person has a good voice, the person has the talent of doing mass comm. Okay, so don't do it, don't pressurize. Possibilities of getting job abroad. बेटा अब तो ये कर लोगे, अब तो जॉब अब्रॉड मिल जाएगी. You'll go in Canada, you'll go to America, you'll go to US, you'll go to Saudi Arabia, whatever, Dubai. So please don't do this. Everything can be, is already written, I believe. And इफ यू हैव अ टैलेंट, अगर आपके पास टैलेंट है तो मुझे लगता है कि नौकरी आपके पास खुद ब खुद आती है. सो यू नीड टू बी मोर फोकस्ड, मोर ग्राउंडेड टुवर्ड्स योर करियर, टुवर्ड्स योर एजुकेशन माय चाइल्ड. करियर दैट विल अर्न यू अ गवर्नमेंट जॉब. ठीक है, अब ऐसा करियर ऑप्ट करो बेटा जिसमें गवर्नमेंट जॉब लग जाए, क्योंकि उसमें क्या होगा, पेंशन मिलेगी आपको ना. पेंशन कुछ जॉब्स में खत्म भी होगी, पेंशन मिलेगी. अब आप ऐसा ही जॉब चूज करेंगी क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी. नो, यू कैन डू गुड इन प्राइवेट सेक्टर टू इफ यू हैव अ कैलिबर, इफ यू हैव अ टैलेंट. ओके, इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? ओके, नाउ द बिग क्वेश्चन इज व्हिच स्ट्रीम शैल आई ऑप्ट? शैल आई ऑप्ट फॉर साइंस? शैल आई ऑप्ट फॉर कॉमर्स? शैल आई ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज? मैं कौन सी स्ट्रीम फॉलो करूं? This is the biggest question you have come for. Exactly. So there is no best stream after 10th standard. Is there? Parents and my dear child, tell me, कोई best stream होती है? Every stream has its own importance. Every stream has its equal efficiency. Okay? सारी स्ट्रीम्स में अपना महत्व है. ठीक है, इट हैज ऑल इम्पोर्टेंस. सारे पेरेंट्स को मैं ये समझाना चाहूंगी, सारे स्ट्रीम्स में अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है. आप उससे कुछ भी बन सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. What factors are going to be, what factors depends on going to choose a career? Your interest, basically, your creative, your social, your unsocial. You have interest in outdoor activities, you have interest in scientific things. Now your values and motivation. आप में क्या values और motivation है? आपकी सिक्योरिटी क्या है? कितने मनी, मतलब आपके पास कितना आपके फादर्स या मदर्स सपोर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप उससे क्या हेल्प कर सकते हैं आगे चल के लोगों को. एंड वर्क लाइफ बैलेंस. Will you be able to maintain work life balance or not? Okay, this is also important. And your personality. Okay,
child on this, please don't communicate. You are here to listen. Okay. Now your personality should be determined, cautious, calm, outgoing. अब आपके क्या कॉन्टेक्ट्स हैं? आप यहाँ से जाके अब आप AU, DU, जामिया, BHU, JNU, कौन से आप कहाँ जा सकते हैं? What qualifications are required? Your location. Will you be able to move out of Aligarh after 12th standard, or will you not be able to move? And your skills. आप में कितने अच्छे कम्युनिकेटिंग स्किल्स हैं? हाउ कैन यू कम्युनिकेट? आप कैसे बोल सकते हैं? एंड आर यू अ प्रॉब्लम सॉल्वर? आर यू एन ऑप्टिमिस्टिक और आर यू पेसिमिस्टिक? आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? आप पॉजिटिव सोचते हैं, आप उसके सॉल्यूशन, आर यू प्रॉब्लम ओरिएंटेड और आर यू सॉल्यूशन ओरिएंटेड? आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड है या नहीं है? एंड टीम वर्क. आपको कौन से, लाइक योर फैमिली इज आल्सो अ टीम? यस और नो? यस. सो इट्स अ टीम वर्क. कंप्यूटिंग, आप क्या कंप्यूट, आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, आप गैदर कर रहे हैं पूरी नॉलेज, एंड देन यू आर ऑर्गेनाइजिंग. ओके. What is career exploration? 3 stages of career exploration. Okay. First stage is determine your interest. आपको अपना interest determine करना है. Second stage, discover your career. आपको discover करना है अपना career. Third stage, plan your goals. You need to plan your goals. Okay. I see few people noting down and few people are not noting. I'll send this PPT to the group also. First stage is determine your interest. आपको अपना determine करना है interest, आपको अपने बारे में जानना है. पहला stage किसी भी career को opt करने से पहले. So first stage is knowing about yourself is the basis of career decision making. आप अपने आप को कितने बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं? Is it important, my child? Yes or no? Okay. For example, as a child, आप 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12 जा रहे हैं. So it's a movement or a progress? It's a movement or a progress without career decision? It's a movement. आप बस मूव कर रहे हैं. 10 से 11, 11 से 12, then graduation. Graduation के बाद भी काफी लोग they are dropouts. They are in mass comm. They are doing graduation from other field. So you don't need to do movement. Okay, you need to have progress. Okay, first is progress. Don't have to. You cancel out movement. है ना? चलो 12th तक कर लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे. पेरेंट्स भी कहते हैं 12th तक यहाँ पढ़ लो, फिर सोचेंगे किस फील्ड में जाना है. तो आप मूव करो बेटा, राइट, फ्रॉम 8, 9, 10, 11, 12. So you don't need to have movement. You need to have progress. What are your interests, your skills, your values? What is important to you about your work? आपके वर्क के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? आपके इंटरेस्ट क्या है? आपकी स्किल्स क्या हैं? आपके वैल्यूज क्या हैं? What are your personal traits, characteristics? आपकी personal traits क्या हैं? आपकी personal characteristics क्या हैं? That matters. Yes or no? Yes. What do I like to do? Ask yourself. मुझे क्या करने में मजा आता है? मुझे क्या पसंद है? What are my preferences? Okay. First thing, what do I value? मैं किस चीज को वैल्यू देती हूँ? Yes, you need to ask yourself. What motivates me? What keeps my curiosity? मुझे क्या चीज मोटिवेट करती है? Okay. कोई बच्चे होंगे यहाँ पे जाके इंग्लिश में they are very interested कि they have good English communicating skills, vocabularies. So what is motivating them? क्या motivating चीज है? आपको क्या मोटिवेट कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्यासे हैं तो आप उठेंगे, पानी पिएंगे. एग्जैक्टली. तो अगर आपके अंदर मोटिवेशन है कुछ करने का, तो यू विल डू इट. अब आपको अपने आप को डिफाइन करना है कि व्हाट इज योर मोटिवेशन. नेक्स्ट, व्हाट स्किल्स डू आई पोसेस? मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं?
what new ones can I develop, और मैं क्या develop कर सकती हूँ. Skills can be learned, yes or no? Yes. Okay, we are human beings, we are not fish, we are not monkey, but we can learn skills. Okay, we cannot imitate, हम उसे imitate नहीं, inject नहीं कर सकते बच्चे में, लेकिन हमारा बच्चा new skills सीख सकता है. For example, आप लोग को यहाँ पर आए थे, there might be few good dancers, right? Yes or no? And some might be good debaters. तो आपने वो स्किल सीखे ना आके स्कूल में, तो वो आप क्या नए स्किल्स सीख सकते हैं, that is also important. Second stage is discover your career. Learning about the career, आपको अपना करियर के बारे में पढ़ना है, आपको उसका रिसर्च करना है बेसिकली. टाइप्स ऑफ जॉब, उसमें क्या क्या जॉब्स आती हैं, ऑब्वियसली PCM, PCMB, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स. ओके, एंड योर एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स. मान लीजिए UPSC में जाना है, तो यू नीड टू हैव +2, यू नीड टू हैव ग्रेजुएशन, योर एज शुड बी 21. Okay, till 30 you can apply. So what skills you have, what are the requirements, उसको भी सर्च करना है जाके, ठीक है. And job functions, आप उस जॉब में जाके क्या फंक्शन करोगे, okay, how you will work, what job roles will be, okay, that is also a determining factor. Now अब आपको ये पूछना है सेकेंड स्टेज पे, what are examples of career in my chosen major. Major मतलब यहाँ पे stream. मेरे examples क्या है करियर में जो मैं stream choose कर रही हूँ या field of interest. Okay? क्या examples हैं? You will search? Yes or no? Okay. Now what job titles interest me? मुझे कौन सा job title interest करे? That is also important. And what type of work environments do I like? मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, मुझे स्कूल सेक्टर में जाना है, आई लव टू हेल्प अदर्स, मुझे मेडिकल सेक्टर में जाना है, मुझे एक आरजे बनना है, रेडियो जॉकी बनना है. तो कौन से फैक्टर्स हैं जो जिस टाइप का एनवायरनमेंट में मैं वर्क करूँगी. ऑब्वियसली अगर आप डॉक्टर हैं और आपको ब्लड से फियर है, ठीक है, फियर ऑफ ब्लड, देयर इज ऑल्सो अ फोबिया नेम्ड दैट. सो आपको if you go and become a doctor, what will happen? You will faint. Yes or no? Okay. तो आपको अपने decisions, अपना करियर उसके अकॉर्डिंग चूज करना है. आपकी पर्सनैलिटी टाइप, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट क्या होगा. Then where can I go to research my chosen career or field of interest? कुछ लोग ऑप्ट करेंगे BA, MA, then B.Ed, M.Ed, PhD. Few will opt BSc, MSc, then research, and few even doctors I have seen these days. The pupils are doing BMS, then they are doing MD, and they are even doing PhD. PhD is research work, right? Masters के बाद आप research के लिए जाते हैं. तो आप research के लिए कहाँ जा सकते हैं? Okay? Third stage is plan your goals. आपको प्लान करने होंगे गोल्स, ऑब्वियसली. सो टेक व्हाट यू हैव लर्न अबाउट योरसेल्फ. आपने अपने बारे में क्या पढ़ा, पहली चीज क्लियर है सबको ना. ओके, बोर तो नहीं हो रहे? ओके, इंटरेस्टिंग, थम्स अप. कैन यू शो मी थम्स अप? ओके, ग्रेट. बिगिन टू इवैल्यूएट करियर ऑप्शंस दैट आर प्रैक्टिकल फॉर यू. आप ऐसे करियर ऑप्शंस चूज करें जो प्रैक्टिकल हो. मान लीजिए आप डॉक्टर के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, अब वो प्रैक्टिकल नहीं है, यू आर वेरी फियरफुल ऑफ ब्लड, सो इट इज इज इट फाइन फॉर यू? नो. नाउ यूज डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग क्या होता है? अपने डिसीजंस बनाना, अपने डिसीजंस लेना. चूज डिसीजन मेकिंग एंड लाइफ प्लान्स. आप क्या प्लान्स हैं आपके लाइफ में? सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं, डू आई हैव द रिसोर्सेज टू परस्यू दीज ऑप्शंस. अब मान लीजिए आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, तो आप उसको क्या होगा, वो ख्याली प्लाव बन जाएगी, डे ड्रीमिंग. एग्जैक्टली, है ना. डिफेंस मैकेनिज्म को आप अपना थ्रेटन करने से बचाएंगे, ईगो को बेसिकली.
Okay, what challenges might be presented during my educational pursuits? क्या challenges आएंगे? Okay, ऐसा नहीं होगा अगर मान लीजिए आपने बीटेक कर लिया तो there might be chances आपका एमटेक में ना हो या पीएचडी में ना हो, तो you are ready for the challenges? और अगर नहीं होता तो failure is the first step of progress. अगर आप कभी फेल हो जाते हैं लाइफ में तो ये मत सोचिए कि अब मैं फेलियर हूँ. बी मोर कंटेंट, मेक मोर एनहांस मोर नॉलेज, मोर पावर, बी पॉजिटिव. अगर एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान है जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव सोचता है कि मैं कर लूंगा, तो कैसी वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी? पॉजिटिव. और अगर एक पेसिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक समझते नेगेटिव, तो कैसी वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी? नेगेटिव. यू विल नॉट बी एबल टू डू. ओके, मैं सोचूं मैं नहीं स्पीच दे पाऊंगी, आई विल नॉट बी दैट कॉन्फिडेंट, सो व्हाट विल हैपन? आई विल नॉट बी एबल टू हैंडल दिस माइक. मैं नहीं बोल पाऊंगी, राइट? सो योर बिहेवियर, योर एक्शन, योर थॉट प्रोसेस समझते हैं? जो आप माइंड से आपके थॉट प्रोसेस निकल रहा है, मैं कर लूंगी, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, दैट इज important. Okay, now what challenges might be presented during my educational pursuit? Okay, this was okay. What else do I needed to know to identify my career objectives? मुझे अपने करियर ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या और जानना जरूरी है? कि क्या रिसर्च वर्क और करने की जरूरत? रिसर्च इज लाइक आप सर्च कर रहे हैं. Okay, research. You are searching it again. Read and search. Do I need to conduct more self-assessment or career research to make career decision? मुझे और self assessment करना है अपना career decision make करने के लिए. Obviously आप self अपने आप को assess करेंगे, तभी तो आप choose कर पाएंगे अपना stream, अपना ग्रेजुएशन, अपना मास्टर्स, ऑब्वियसली, राइट? अगर आप सेल्फ असेसमेंट नहीं करेंगे तो आप ड्रॉप आउट होंगे. ओके, सो देयर इज अ पिक दैट शोज योर पर्सनालिटी टाइप. आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है? और अगर वो मैच हो गई, अ करियर और अ मेजर, इट्स अ कंपैटिबल वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है, देन इट लीड्स टू ग्रेटर सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन. Pupil who chooses a career or major means your stream, ठीक है, आप ऐसा करियर चूज कर रहे हैं, अपनी स्ट्रीम चूज कर रहे हैं that matches or is similar to their personality, वो आपकी पर्सनालिटी सिंक्रोनाइज कर रही है, सिमिलर है, तो क्या होगा? आपके इंटरेस्ट टाइप्स आर मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल. आप उतने सक्सेसफुल हो जाएंगे और यू माइट बी मोर सेटिस्फाइड. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. The consequences of not planning are costly. अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली कॉस्टली होगा. ऑब्वियसली आप स्कूल आएंगे, आप फी पे कर रहे हैं, इट विल बी कॉस्टली, राइट? देन यू आर ड्रॉपिंग आउट. नाउ स्विचिंग मेजर्स और स्ट्रीम. अगर आप प्लान नहीं करते तो आप अपना मेजर या स्ट्रीम चेंज करेंगे कल को जाके, और नहीं तो आप फेल हो जाएंगे मैथ्स में. ओके, नहीं तो मान लीजिए किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है ह्यूमैनिटीज में और वो पीसीबी का है, अब उसको ऑप्ट करनी है, आपको आईएएससी बनना है, बेटा आपको तो इसी फील्ड में जाना है, तो क्या होगा? वो स्विच करेगा, ठीक है, ड्रॉप आउट करेगा नहीं? चाइल्ड यस, where's your concentration बेटा? Look at me. Extended years in school, obviously, अब आपने एक साल 11th किया, now you are dropping out, now you are going to डिफरेंट फील्ड, तो एक साल आपने एक्सटेंड किया, तो एक्सटेंडेड ईयर्स हो गए. नाउ रनिंग आउट ऑफ फाइनेंशियल एड. ऑब्वियसली एक लिमिटेड बजट था, अमाउंट था, पेरेंट्स ने रखा था. दे माइट बी फ्यू माइट बी रनिंग आउट ऑफ फाइनेंशियल एड, फ्यू माइट नॉट बी. टिल हियर एवरीवन इज क्लियर? पेरेंट्स एंड टीचर्स? पेरेंट्स, ओके. Streams offered in our school, first is PCM, physics, chemistry, mathematics. Second is PCB, physics, chemistry, biology. Humanities, it comprises of history, political science.
and then you can opt any one subject, sociology, economics, painting. Okay, painting is also known as your fine arts. आप एक कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं. नाउ कॉमर्स, वी हैव अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स. कंपल्सरी सब सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने. इंग्लिश आपको पढ़ना ही पढ़ना. एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आप हिंदी, पीएचडी, कंप्यूटर साइंस में एक ऑप्ट कर सकते हैं. ओके, एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, गुड. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. स्कोप आफ्टर प्लस टू साइंस. आपके क्या स्कोप हो सकते हैं आफ्टर प्लस टू साइंस? ऑप्शंस आफ्टर साइंस स्ट्रीम पीसीएम, जनरल बीएससी कोर्सेज. ऑब्वियसली आप पीसीएम के बाद बीएससी कोर्सेज कर सकते हैं, राइट? यस और नो? ओके, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इन सब में आप बीएससी कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स. इलेक्ट्रॉनिक्स, study of analog electronics, electromagnetic. Industrial chemistry, polymer chemistry, drugs and dyes, operational research. Operational research होती है problem solving and decision making. Environmental science, heavy and fine chemicals, programming. डिग्री और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. कुछ लोग डिप्लोमा और डिग्री भी कोर्सेज करते हैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में भी, है ना? यस और नो? यस. सो इलेक्ट्रिकल में होता है डिप्लोमा, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सिविल में, कंप्यूटर साइंस में, एरोनॉटिकल एंड एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, बायोकेमिकल, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग स्लैश इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल biotechnology, dairy and food, irrigation, manufacturing science and engineering, telecommunication, metallurgy, mining, ocean engineering and naval architecture, petrochemical, pharmaceutical, printing. Engineering and technology. अब engineering किस में हो सकता है, right? बीटेक, aerospace engineering, automobile engineering, biomedical engineering, broadcast technology, chemical engineering, civil engineering, computer engineering, electrical engineering, software engineering, electrical engineering. Then you have industrial engineering, marine engineering, mechanical engineering, mining engineering and metallurgist, naval architecture, production engineering, telecommunication engineer, polytechnics, है ना? आप लोग अवेयर होंगे पॉलिटेक्निक्स भी होती है, राइट? फ्यू ऑफ द हेड्स आर शेकिंग एंड फ्यू आर नॉट. दे आर ड्रीमिंग. आई नीड योर अटेंशन हियर. 3 years diploma courses are offered by various polytechnic controlled and run by various institute. वो इंस्टीट्यूट जो है ये 3 years डिप्लोमा होता है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट से रन होता है. वो इंस्टीट्यूट प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं. अब गवर्नमेंट में भी सेंट्रल, स्टेट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स तो नहीं आपके, ठीक है? और आपको पता होगा यूनिवर्सिटीज़ में भी सर्च करिएगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी. हाईएस्ट एफिशिएंसी होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, देन स्टेट, देन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, देन प्राइवेट. ओके. The qualification required in these cases range from 10th standard to +2 with physics. आपको क्या qualification चाहिए होगी? 10th standard +2 with physics, +2 समझ रहे? 12th standard with physics, chemistry and mathematics, and the admission is generally granted strictly as per the merit of marks. Admission merit of marks पे मिलता है कहीं कहीं, not everywhere. खुश मत हो जाइएगा, नहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा एंट्रेंस के लिए, पढ़ना पड़ेगा. Okay, you need to do smart work rather than hard work, and there may be academic examination and entrances too. There are certain non-engineering trades like ceramics, printing, production and chemical technology which are of lesser duration. ये कुछ कम duration के होते हैं. There might be 2.5. Options after science stream with फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. ऑब्वियसली आप बीएससी कर सकते हैं.
जनरल साइंस कोर्सेज जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे जनरल कोर्सेज आप कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं इन एन नंबर, एन मीन्स अ लॉट नंबर ऑफ branches in BSc, right? Clear है? Are you bored? No. I need high level of energy. Okay? Concentration. थोड़ी देर बाद आपकी हो ही जाएगी छुट्टी. One can take applied competent subjects like biotechnology, horticulture, marine science, environmental science, food production, preservation and post-harvest technology, fishery, biology, etc. Other courses like industrial, biochemistry, applied nutrition, health information, administration, genetics, etc. आप साइंस में पीसीबी के बाद इन स्ट्रीम्स में भी जा सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट medical and paramedical science courses, paramedical and medical science courses, MBBS, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. अब आप लोग सोच रहे होंगे why it is written like this. It's written like MBBS and it's written in full form like this. Okay, Bachelor of Medicines and Bachelor of Surgery. BAMS, Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery. BUMS, Bachelor of Unani Medicine and Surgery. BHMS, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery. BDS, Bachelor of Dental Surgery. B Pharma, that's related to pharmacy, right? Veterinary Science and Animal Husbandry. Okay, do you have seen the doctors of animals, right? Yes or no? So, physiotherapy, there are lots of therapies that a therapist provide. That's a physiotherapist, okay? And nuclear medical technology, respiratory therapy technology, lungs से related होती है वो therapy, okay? Like there are lots of TB, tuberculosis सुना होगा. So आपका ये जो respiratory therapy technology है, that is related to that and functions of lungs, respiration, okay? ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी, आपने काफ़ी बच्चे देखे होंगे जो दे हैव वो अच्छे से नहीं बोल पाते, दे हैव नॉट दैट कॉम्पिटेंट इन स्पीचेस, दे कैन नॉट स्पीक फ्लुएंटली, दे माइट बी हैविंग ADHD and a number of disorders. So here the speech therapists play a role, occupational therapist and optometry आप समझते हैं आई, okay. Then moving to the next slide. Other medical line courses are nursing. Nursing में भी तो जा सकते हैं, obviously. Pharmacy, I covered B Pharma, right? तो pharmacy में भी जा सकते हैं, optician भी बन सकते हैं, vaccinators, वैक्सीन जो करते हैं आपको, है ना? That are called vaccinators. Dark room assistants, आपने देखा होगा रेडियोलॉजिस्ट के साथ एक डार्क रूम असिस्टेंस भी होता है, बिकॉज उनका एक्सरे कब आएगा, वो तो डार्क रूम में आता है, राइट? देखिए इफ देयर इज अ लाइट इट कैन नॉट बी प्रिंटेड, वो नहीं प्रिंट होगा, सो डार्क रूम. एंड देन वी हैव रेडियोग्राफर्स जो रेडियोलॉजी में होते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, ओके, ऑब्वियसली लैब को चलाने के लिए टेक्नीशियंस भी चाहिए होंगे, है ना? एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर्स दैट मेंटेन हेल्थ एंड हाइजीन, सो यू हैव इंस्पेक्टर्स गोइंग ऑन इंस्पेक्शंस कि आपकी सैनिटरी मेंटेन है या नहीं इन द लोकेलिटी. यस, होटल इंडस्ट्री, देयर माइट बी फ्यू चाइल्ड्स हु वुड बी इंटरेस्टेड इन होटल इंडस्ट्री, है ना? कुछ इंटरेस्टेड होंगे होटल इंडस्ट्री में, यस और नो? तो होटल मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं आप, कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन, कैटरिंग, सर्विंग. देयर आर सेवरल प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ होटल मैनेजमेंट, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं होटल मैनेजमेंट के प्राइवेट. इफ यू गूगल यू गूगल इट, यू सर्च इट, यू कैन फाइंड इट, ओके? And most of these institutes offer diploma in hotel management with specialization in front office. आपको front office कितना भी आप काम कर सकते हैं, ये diplomas offer करते हैं. Food and beverages, housekeeping, catering. Diploma courses is generally of 3 years. ये diploma course of hotel management जो होता है वो कितने साल का होता है? 3 साल का होता है, okay?
द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज +2. +2 आपका 12th रिक्वायर्ड है विद 50% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. अच्छा एक बात बताइए, क्या परसेंटेज लाना ही इम्पॉर्टेंट है? नो. ओके, बट परसेंटेज होना भी इम्पॉर्टेंट है. Like you gain at least 80%, about 80. I would expect from every child who is coming here. I can see all the sincere child coming here. Obviously पार्टी करने नहीं आए ना, सुनने आए. तो आप एक बात बताइए, क्या हमारा फोकस सिर्फ परसेंटेज पे होना चाहिए? Yes or no? I need your answers. No. आपका होना चाहिए फोकस पढ़ाई पे. परसेंटेज विल कम बैक ऑफ यू. जैसे मैंने बोला था कि अगर आप एक्सीलेंट अपने फील्ड में हैं तो क्या होगा? सो यू बूम, यू विल बी ऑन द टॉप पोजीशन. यस और नो? है ना? और अगर आप अपने अंदर स्किल्स पैदा करते हैं, आप पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं, आप उसको डेली पढ़ते हैं, यू रिमेंबर इट, यू नॉट रिट्रीव इट. रिट्रीव का मतलब समझते हैं? उसको याद करते हैं, दोहराते हैं बार बार. Because your brain is like a tabula rasa. In psychology it is named as tabula rasa. Tabula rasa समझते? Blackboard. ठीक है? तो वो तो प्लेन होता है. चौक से लिखेंगे तो वो और गहरा होगा, और चौक से लिखेंगे तो और. ठीक है? तो आपका ब्रेन ऐसे ही फंक्शन करता है. करता है नहीं करता है? अब आपको ABCD पहले याद करना फर्स्ट स्टैंडर्ड में कैसे टफ था? नर्सरी में था? नहीं था? And now you remember it. 26 alphabet in one go. How? Because you retrieve it. आपने याद किया, आपने रिमेंबर किया, है ना? तो ऐसे ही अगर आप रिट्रीव करते हैं बार बार चीज़ों को, आप याद करते हैं, so you gain lot of marks, you gain lot of percentage. Percentage will come back of you. Okay? आपको बस पढ़ना है. You need to be more, you know, आप अपने टाइम एक स्केड्यूल बनाएं, एक अच्छा सा, और वो भी स्केड्यूल रिलेवेंट होना चाहिए, इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए कि मैं 1 बजे जाऊंगी तो 2 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगी. इट्स नॉट पॉसिबल. एटलीस्ट 3 बजे, बिकॉज यू फील लेथार्जिक. यहाँ से थके हुए भी तो जाएंगे, रेस्ट भी तो लेंगे, खाना भी तो खाएंगे. ओके, नाउ आर्किटेक्चर. One needs to have chosen a science stream. आर्किटेक्चर बनने के लिए आपको ऑब्वियसली साइंस स्ट्रीम चाहिए होगा, PCM चाहिए होगा. देन यू विल डू BArch, देन यू विल डू MArch. ओके, आप पहले BArch करेंगे. ऑब्वियसली आप हायर पोजीशन में एकदम नहीं चले जाएंगे ना, तो ऐसे क्या नींव रखी जाती है, ब्रिक्स रखी जाती है. सो यू विल डू BArch एंड देन यू विल डू MArch. ओके, होम साइंस एंड रिलेटेड कोर्सेज. होम साइंस और उसके रिलेटेड कोर्सेज क्या होते हैं? क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन. आप डाइटिशियन बन सकते हैं. आपने काफ़ी देखा होगा हॉस्पिटल में डाइटिशियंस होते हैं. यस और नो? डाइटिशियंस. होम साइंस, आप होम साइंस में आपके ऑल एम्ब्रॉयडरी, फूड, कुकिंग, एवरीथिंग इंक्लूड्स इन होम साइंस. समझ में आ रहा है सबको? पेरेंट्स एंड टीचर, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स. ओके, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट. आपकी फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, एक्सटेंशन एंड एजुकेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सेट्रा. नाउ नेशनल डिफेंस एकेडमिक एग्जामिनेशन. काफ़ी मैंने मेल कैंडिडेट्स को तो देखा ही है, दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन गोइंग दिस, राइट? दिस एग्जाम इज जनरली कंडक्टेड ट्वाइस एवरी ईयर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे एंड नवंबर. तो ये 2 बार होता है एग्जाम एक साल में. ठीक है, कौन सा एग्जाम होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमिक एग्जामिनेशन. कैंडिडेट्स आर टेस्टेड इन मैथ्स एंड जनरल एबिलिटी. मैथ्स आपका वही 10th तक आता है बेसिकली. ठीक है, सो यू नीड टू बी गुड एट मैथ्स एंड जनरल एबिलिटीज. काफ़ी बुक्स आती है जनरल एबिलिटीज की. You have logical reasoning there, you have mathematical reasoning and aptitude and all. Okay, now 10+2 pass are eligible for Army, Navy and Air Force. जिन्होंने 12th किया होता है वो एलिजिबल है आर्मी में जाने के लिए, नेवी में जाने के लिए और एयर फोर्स में. All those who pass the examination are required to undergo a service selection board SSB interview and a detailed medical examination. Obviously आपका detailed medical examination भी होगा. Are you physically fit or not? Obviously, right? Joining as cadets at the National Defence Academy NDA.
Karasvasla, Pune. After 3 years in NDA and 1 year in military naval or Air Force academics, the cadets are commenced into the service as second lieutenant. 3 साल NDA पे आप होंगे, 1 साल मिलिट्री नेवल फोर्स पे या एयर फोर्स एकेडमिक्स पे, तब आपको एक सेकंड लेफ्टिनेंट या एक्टिंग लेफ्टिनेंट या पायलट ऑफिसर रिस्पेक्टिवली का पोजीशन दिया जाता है। अब यूपीएससी भी काफ़ी लोग होंगे, नेशनल पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरेस्टेड होंगे, तो उसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए होता है, ठीक है, एंड योर एज शुड बी 21, ओके, and you need to more Google, you can Google it. Apart from that, scope after humanities, okay, humanities के बाद क्या स्कोप होता है? Obviously BA, Bachelor of Arts, है ना, कर सकते हैं, yes or no? Yes. तो किस किस फील्ड में कर सकते हैं? इंग्लिश में कर सकते हैं, हिस्ट्री में कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हैं, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, राइट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, साउंड्स ग्रेट, sociology, study of society, environment, anthropology, literature, geography, education, philosophy, linguistic, language, rural development, Sanskrit, Urdu, Arabic. आप इन सारे फील्ड्स में क्या कर सकते हैं? ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ग्रेजुएट कोर्सेज इन वेरियस वोकेशनल सब्जेक्ट्स, आप ग्रेजुएट कोर्सेज के बाद क्या और कर सकते हैं? वोकेशनल सब्जेक्ट्स, सोशल वर्क में जा सकते हैं, MSW, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। सोशल वर्क क्या होते हैं? सोशल वर्कर्स, हैव यू सीन इन NGO, है ना, तो आप उसमें जा सकते हैं। मास कम, ओके, जर्नलिज्म दैट इज रिलेटेड टू मास कम, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को जो एनालाइज करते हैं, दैट आर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, पॉपुलेशन स्टडीज, जो डेटा सर्च करते हैं, डेटा पढ़ते हैं, कितने हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन स्टडीज, राइट, एंड देन यू हैव ट्रैवल एंड टूरिज्म, ओके, यू कैन डू कोर्सेज इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, आप ट्रैवल एंड टूरिज्म में कोर्सेज कर सकते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी, आपकी हेल्थ में क्या साइकोलॉजी डिपेंड करती है? ऑब्वियसली आपकी 3 चीजें रूल करती हैं एज ए इंडिविजुअल, माइंड, बॉडी एंड सोल, एम आई राइट? माइंड, बॉडी एंड सोल, ओके. So, if your mind is lethargic, can you work? No. If your mind is inappropriate, you are having pessimistic views, आप में negativity भरी है, तो आप क्या अच्छे से कर सकते हैं काम? Yes or no? कर सकते हैं? No. जिन लोगों ने yes बोला है, उन्होंने सुना ही नहीं आंसर। Pessimistic या optimistic कहा था? Pessimistic कहा था। Pessimistic means negative thinking. If you, there are 2 bulls in your head, a negative bull और a positive bull. और अगर आप नेगेटिविटी फीड कर रहे हैं तो क्या एक्शन नेगेटिव ही निकलेंगे, पॉजिटिव फीड कर रहे हैं तो पॉजिटिव एक्शंस होंगे। तो नाउ आपकी बॉडी, यू नीड टू बी हेल्दी, यू नीड टू, अगर आप हेल्दी खाते हैं तो क्या होगा? अच्छा रहेगा, और अगर आप हेल्दी नहीं खाते तो क्या रहेगा? फूड पॉइजनिंग, आप जल्दी, आपके लीवर खराब हो जाएंगे, काफ़ी चीज़ें खराब हो जाएंगी, योर बॉडी में डिट्योर खराब होने शुरू हो जाएगी। एंड देयर इज सोल, सो एज ए ह्यूमन तीनों चीज आपको सिंक्रोनाइज करनी है, योर माइंड, योर बॉडी एंड योर सोल। सोल को क्या चाहिए? मेडिटेशन, ओके, मेडिटेटिंग, मेडिटेशन, तो मेडिटेशन के बहुत सारे टाइप के होते हैं, स्पिरिचुअल मेडिटेशन, रिलीजियस मेडिटेशन, एंड यू व्हाट यू कैन से माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस समझते हैं? आप किसी भी चीज़ को देख के थैंकफुल हो, माइंडफुलनेस, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए आपके अंदर। देन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, आप सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में जा सकते हैं। आपने सुना होगा CS होता है, फूड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्टडीज। स्कोप आफ्टर कॉमर्स, कॉमर्स के बाद क्या स्कोप होता है? सॉरी, BCom, बैचलर ऑफ कॉमर्स, BBA, BBM, आप ये सब कर सकते हैं 12th के बाद, yes or no? Yes. One can specialize in financial accounting and auditing. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जा सकते हैं आप, ऑडिटिंग, यू हैव सीन बहुत सारे लोग आते हैं ऑडिटिंग करने, AC का ऑडिट,
in showrooms. So what is that? That is auditing. And auditing and cost accounting, auditing के साथ cost accounting, banking and finance, banking में जा सकते हैं, finance में जा सकते हैं, taxation में जा सकते हैं, actual science. What is actual science? Is evaluating risk and maintaining the economic stability of insurance and financial organization. आप evaluate करते हैं risk. अब आप सोच रहे होंगे कॉमर्स में साइंस कैसे आ गया? It's just a term. So we are evaluating risk and maintaining the economic stability of insurance and financial organizations. ठीक है? बिजनेस मैनेजमेंट, आप बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है, बिजनेस को कैसे रन किया जा सकता है. ठीक है? लाइक एक बीबी तो करते हैं बैचलर के बाद. फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, फॉरेन ट्रेड कैसे होती है, उसकी प्रैक्टिस क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है. देन बीइंग सीए, काफी लोग इंस्पायर्ड होंगे कॉमर्स में जाने के बाद, आई वांट टू बिकम अ सीए, राइट, चार्टर्ड अकाउंटेंट. ICWA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये भी एक कोर्स होता है, आप ये भी बन सकते हैं. CS, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, कंपनी की सेक्रेटरीज होती हैं काफी. नाउ करियर्स आफ्टर स्टडीज इन कॉमर्स, क्या करियर्स आप बना सकते हैं? अकाउंटेंट, जैसे मैंने पहले डिस्कस करा. बैंकर बन सकते हैं. एक्चुअरी, एनालाइज द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. एक्चुअलीज क्या करते हैं बेसिकली, आप फाइनेंशियल कॉस्ट जो है कैलकुलेट कर रहे होते हैं, उसका रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, क्या उसकी रिस्क है और उसकी अनसर्टेनिटी क्या होगी. ठीक है? बिजनेस मैनेजर, एक्सपोर्ट प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी हो सकता है. MCOM, मास्टर्स ऑफ कॉमर्स. MBA, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट. फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में आर्चरी में जा सकते हैं और बैंकर, इकोनॉमिस्ट, इक्वालिटी रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, स्टॉक ब्रोकर, वेंचर कैपिटलिस्ट. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. एवरीथिंग इज क्लियर स्टूडेंट्स, माय डियर? कुछ लोग बिल्कुल चुप बैठे. नाउ मैनेजमेंट. Now you can be a brand manager, business development manager, business manager, event manager. काफी event organize होते हैं. You can talk afterwards. Export manager, human resource development, management consultant, market research executive, operations and logistic manager, retail manager, rural manager, sales and marketing manager, technical manager. आप इन चीज में भी आप मैनेजर बन सकते हैं. गॉट द पॉइंट. हॉस्पिटैलिटी, एयर हॉस्ट्रेस या एयर होस्ट, काफी लोग बनना चाहते हैं. दैट माइट बी हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, इंटरेस्टेड होंगे एयर हॉस्ट्रेस बनने के लिए, है ना. लेकिन पेरेंट्स में भी डिक्लाइनिंग, नहीं अच्छा प्रोफेशन नहीं है. देयर इज नो सच बैड और गुड प्रोफेशन. इफ यू आर गुड इन योरसेल्फ, यू कैन बी इन एनी प्रोफेशन. आप किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं अगर आप खुद सही हैं, तो यू कैन स्टे. यू कैन बी एयर हॉस्ट्रेस, गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव, होटल मैनेजमेंट, ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रोफेशन, मीडिया कम्युनिकेशन. यू कैन बी अ cinematographer. You understand who is a cinematographer? Yes. Client service executive, copywriters. You can write copywriter. You can be a film editor, or you can do film editing. You can be a journalist, okay, who collects the information, the news, everything. And you can be even a news reporter, media planner, public relation executive, publishing executive, visualizers. Now, talent-based offbeat careers that are based on your talent. Pet grooming, लेकिन इसका भी आजकल VLCC से कोर्स होते हैं. ओके, टैलेंट बेस्ड का भी यू लर्न. ऑब्वियसली पेट ग्रूमिंग आप ऐसे तो नहीं सीख सकते ना. यू नीड टू लर्न बाय एक्सपर्टाइज. ओके, सो जो उसमें एक्सपर्टाइज होगा, ऑब्वियसली अगर कोई किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज, यू लर्न फ्रॉम दैट. ओके, सो अगर आपको पेट ग्रूमिंग सीखनी है, सो यू विल लर्न फ्रॉम द एक्सपर्टाइज. There are certain institutes like VLCC, Javed Habib's and so on. Hair styling, aromatherapy, tarot reading. You can go in, काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होते हैं एस्ट्रोलॉजी में जाने के लिए. So you learn it through an official, astrologers.
Now few people call them pandits. हाँ पंडित जी के पास जा रहे हैं. But they are astrologers, video jockey, reiki practitioners, makeup artists, cosmetologist, chef. आपको कुकिंग सीखने के लिए चेफ बनते हैं आप ऑब्वियसली. सो कुकिंग के लिए भी आपको एक काफ़ी ये चीज़ें सिखाई जाती हैं इंस्टीट्यूट में. एंड कोरियोग्राफर्स, ऑब्वियसली कोई चीज़ शूट होती है तो कोरियोग्राफर्स होते हैं. सो दे आर ऑल्सो एक्सपर्टाइज इन देयर फील्ड. दे लर्न दैट. ओके, दे लर्न द टैलेंट, हाउ द वीडियो इज एडिटेड एंड सो ऑन. नेक्स्ट इज 4 P's. What are 4 P's? You will survive only if you believe in the power of your dreams. आप तभी सर्वाइव कर सकते हैं जब आप अपनी पावर ऑफ ड्रीम्स में बिलीव करें, यकीन रखें कि मेरी जो ड्रीम है मैं उसको पूरी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तभी तो पूरी होगी. और मैं सोचूं कि नहीं कर सकती तो क्या वो पूरी हो सकती है? नहीं, ऑब्वियसली नो. सो यू नीड टू बिलीव इन द पावर ऑफ योर ड्रीम. आपको अपने ड्रीम पे यकीन रखना है, अपने आप पे यकीन करना है, आत्मविश्वास रखना है अपने ऊपर. ओके, नेक्स्ट, टू बिलीव इन द पावर ऑफ योर ड्रीम्स, रिमेंबर द 4 P's. पर्पस. आपका पर्पस क्या है? ठीक है, आपका पैशन क्या है? आप किस लिए? आपका पैशन आपके अंदर से आता है कि मैं एक सिनेमेटोग्राफर बन जाऊँ, मैं एक रेडियो जॉकी बन जाऊँ, मैं एक साइकोलॉजिस्ट बन जाऊँ, मैं एक साइंटिस्ट बन जाऊँ, मैं नासा चले जाऊँ. 4 P's: पर्पस, पैशन, पॉसिबिलिटीज, पावर. ओके, यस और नो? ओके, नेक्स्ट इज हैव अ पर्पस इन लाइफ. अगर जिसका पर्पस नहीं होता तो वो क्या होते हैं? एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स में क्या डिफरेंस है? They don't have purpose. They eat, sleep, they go for a walk. That's it. Life khatam. We have a purpose because we are human beings. We are born with intellectual abilities. IQ है हमारे पास. Intelligence quotient, IQ, EQ, emotional quotient. तो हमें हमारे आपको पर्पस इन लाइफ पे बिलीव करना है. हैव अ पर्पस इन लाइफ, अ ड्रीम विल फॉलो. अगर आपके पास पर्पस है जीने का तो आपकी ड्रीम जो है वो आप पीछे पीछे आएगी. ठीक है, आपको टाइम नहीं वेस्ट करना डे ड्रीमिंग में. मैम ने कहा था कि बस सोचना है, अब सेल्फ एनालिसिस करनी है तो मैं अब सेल्फ एनालिसिस करूंगा या करूंगी. उसके अलावा उस पर वर्क भी करना है, रिसर्च भी करना है. अपने आप को समझने के बाद उसके बाद क्या है, क्या कर सकते हैं, क्या मेरा पर्पस है, क्या मेरी पैशन है, क्या मेरी पॉसिबिलिटीज है, क्या मेरी पावर है. ट्रिम दिस ड्रीम विद पैशन इन योर हार्ट. आपको ट्रिम करना है. ट्रिम मीन्स कैंची से नहीं काटना है. ओके, नाउ यू नीड टू मेक इट प्रिसाइज. ओके, आपने क्या मान लीजिए समवन चूज टू बिकम अ प्रोफेसर, तो मुझे BSc, MSc, then obviously PhD, right? Or someone will be doing BA, MA and then be PhD. Now you have to trim it and possibilities will open for you. Now obviously जब आपने अपना एक गोल बना लिया, आपने एक स्केच बना लिया, आपने एक मैप बना लिया, तो आपकी पॉसिबिलिटीज खुद ब खुद खुलेंगी बिकॉज आपने एक स्मार्ट वर्क किया है हार्ड वर्क के साथ. ऑब्वियसली नाउ choose today to start believing in the magical power. आज से आपको अपने ऊपर बिलीव करना है, आपको शुरू करना है बिलीव करने के लिए मैजिकल पावर ऑफ विशिंग, होपिंग एंड ड्रीमिंग. मैजिकल पावर ऑब्वियसली होती है अगर हम विश करते हैं, होप करते हैं एंड ड्रीम करते हैं अबाउट दैट. विद दिस आई वुड thank the principal and vice principal for giving me the opportunity to speak on this session, and I thank you all the parents, the students for taking your time. मैं आप लोग का धन्यवाद करना चाहूँगी. आप लोगों ने अपना टाइम दिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे लिए. टीचर्स भी आए, मेरे कलीग्स आए. I would thank for your cooperation everyone.